Okay, so okay. So we are also learning few concepts of like few advanced areas. So today as well, we'll move forward with as advanced areas only, in specifically the triangle part. Okay. So does anyone have any question from the previous classes? So I'll just show you what we were learning in previous classes. So we have seen the bifurcation of triangle. I mean the classifications of triangle on the basis of its sides and angles. Okay. So sides, we saw that there are three classifications in terms of size. We have equilateral, isosceles, and scalene. Scalene, in which no sides are equal, like तीनों side में different lengths होते हैं. Isosceles, it was like two sides were equal. For example, as we were saying, if if we see a triangle, this one. Okay. If we see this triangle, so in that case, this was actually a equilateral triangle. This was equal from all sides. And also in equilateral triangle, we have seen that the inner angles, those value is always 60 degrees. Okay. And then all the sides are equal. So it was 2 centimeter, 2 centimeter to 2 centimeter to isosceles. Two sides, for example, two sides will be equal, and one side will probably will be greater, like base will could be a larger one, or any part of it could be a larger one. Base could be 2, this side could be 2, and this side could be a 3. um, okay, anything like this. So isosceles we have also seen, and then in angles perspective, we have seen acute angle, obtuse, and right angle triangles. So specifically acute angle we have seen, what was it? Then obtuse we have also seen, and right angle also we have seen. So yeah, so all of these things we were kind of exploring in the last class. Okay. Okay. So I hope there was no doubt as such. So now we will start with congruency of a triangle. So this term, I mean, okay, somebody has written something. Yeah, good afternoon. Thank you. Okay. So in congruency of a triangle, so this congruency, this term has its own meaning. So can anyone tell me what congruency is, or what this term means? Is anyone aware about this particular term, congruence or congruency? Is anyone aware about this particular word? Does anyone know the meaning of it? I mean, you can write yes or no, or if anyone knows the meaning, you can also write it down. Okay, 3 of you have answered. Let me see. Okay, yes. Okay. So Satyam Mishra is writing, two images overlap each other. Right. Yeah. So Satyam, as you can follow the chat as well as the video that's going on, right? As you are in live class. Copy of one. Yeah. Okay. Could be. Okay. So Satyam Mishra has written two images that overlap with each other. So overlap मतलब समझ आ रहा है आपको? तो अगर हम लोगों का hand है, ठीक है? एक अगर hand है, for example, don't go with the diagram, just see what is it. So for example, this is a hand, so your left hand will overlap with your right hand, right? Like basically the size, the shape, the model number, not the model number, like in general the model of your hand, the basic properties of your two hands are equal, like are overlapping with each other. So that is, yeah, Satya, so he's right. So it is a congruency. Yeah. Another thing is that you can also, in these days, we have seen iPhones model, right? iPhone models. So in 12 series, we have seen like 12 mini. So a blue 12 mini will be congruent with another blue 12 mini. Okay. So like that. But a 12 mini will not be congruent to 12 Pro. Okay?
iPhone 12 Pro. If you are considering like real life examples, so this is about it. So in और मतलब और ज्यादा लेमन टर्म में अगर जानना है किसी को, तो एग्जैक्टली इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. सेम साइज और शेप, मतलब साइज और शेप भी सिमिलर होगा. जैसे आपके दो हाथ का है, मतलब yeah, Yash is also right. So iPhone 11 is not congruent to a damaged iPhone 11. Yeah, so probably if your corner part is broken, so in that case corner part अगर टूट गया तो फिर एक नया मतलब 11 से नहीं congruent होगा. ये पार्ट अगर नहीं है आपके, ठीक है. So that phone won't be useful as well. Okay. So shape और size में it would be equal and basically compatible होगा. दो चीजें, दो shapes अपने एक दूसरे को compatible है, overlap कर रहा है, all of these terms, ठीक है. तो कॉन्ग्रुएंसी को कुछ हम लोग देख लेते हैं, मतलब अभी ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है. तो ये तो हो गया आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल. अभी आपका ट्रायंगल के बेसिस पे ना कुछ कुछ चीजें होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल. यू कैन देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक SSS. SSS मतलब आपको समझ आ रहा है, साइड्स, राइट. और एक होता है SAS. नेक्स्ट इज ASA, एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड, ठीक है. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं बस टर्मिनोलॉजी पहले बता दे रही हूँ, ठीक है. AAS एक होता है और एक होता है RHS. यू ऑल नो, लाइक राइट, ये वाला. ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस SSS वाला पहले देखते हैं. सो विल गो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे, ठीक है. ये 1 2 3 4 5 ये लाइक पांचों देखेंगे हम लोग. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगल है. इज इट लाइक विजिबल? येलो कलर मैं चेंज कर दे रही हूँ कलर, विजिबल हो जाए, ठीक है. ये एक येलो ट्रायंगल है, ठीक है. ये ट्रायंगल एक है, मैं सिमिलर ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक कॉन्ग्रुएंट ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है. सो दीज टू like triangles are there. So this one, this side and this side is equal, this side and this side is equal, and this side and this side is equal. So मतलब तीनों साइड इक्वल, लाइक एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल होंगे. तो तभी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस आर कॉन्ग्रुएंट SSS. नेक्स्ट आपका SAS वाला क्या होता है. यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल समझ लीजिए ऐसा है. तो ये एक एंगल है, कोई भी एंगल आप पकड़ सकते हो, ठीक है. मतलब इसको थोड़ा सा और टिल्ट कर देते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है. दिस एंगल, कोई भी एंगल, मैंने ये एंगल पकड़ा है, कोई भी एंगल आप कंसिडर कर सकते हैं. तो दिस वन should be kind of equal, like exactly equal to this one. This angle should be exactly equal to this one, and this one should also be equal to this one. Basically, दोनों साइड के मिडिल में जो एंगल है that should be equal, like SAS में. और AAS में आप समझ पा रहे हो, which is एक डायग्राम से देखते हैं, similar sort of a diagram we can consider. यहाँ पे जैसे अगर दो ट्रायंगल है ऐसे, तो ऐसे में अगर आप दो साइड्स पकड़ रहे हो, लेट्स कंसिडर दिस वन एंड दिस वन ओनली, तो ये दोनों सेम होगा, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर होगा, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा एग्जैक्टली, ठीक है. तो दिस इज अबाउट इट. तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये मतलब AS एक साइड और A ये सब इक्वल है. तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. देन एक है आपका, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे मिस्टर मिश्रा सेड कि ये आपका कन्वर्ज करेगा, लाइक ओवरलैप करेगा, कन्वर्ज, लाइक दोनों शेप एक दूसरे को कवर कर देगा एग्जैक्टली. इसको अगर इसके ऊपर चढ़ा जा, मतलब इसको अगर इसके ऊपर आप प्लेस कर रहे हो, तो ये
ये फिगर और ये फिगर मर्ज कर जाएगा, मतलब एक ही लगेगा आपको ऊपर से, ठीक है। अगर आप टॉप व्यू दे ले रहे हो तो इसको सेम लगेगा। तो दैट इज अबाउट इट, लाइक कॉन्ग्रुएंसी में यही होता है। देन आपका AAS एक है, यहाँ पे वही है सिमिलर, जैसे SAS में साइड का दो एंगल और एक मिडिल का साइड हम लोग लाइक दो एंगल और मिडिल में एक साइड कंसिडर कर रहे थे, तो वैसे ही AAS में क्या करते हैं हम लोग, दो एंगल कंसिडर करते हैं। For example, these two are the angles and this would be the side. Okay. Similar way में और एक triangle देख लीजिए, यहाँ पे भी अगर this two are the same thing, मतलब ये दो अगर same angle है, ये अगर same angle है और ये अगर same है, तो AAS. This is a form again. तो RHS में तो सबको पता ही होगा, like right angle वाला सही सिनेरियो होता है। तो this is right angle and then ये 90 डिग्री अगेन राइट एंगल का होता है, तो दिस इज अगेन 90 एंड देन टू साइड्स अगेन, दो साइड इसका भी सिमिलर होगा। सो दिस इज अबाउट इट, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक? लाइक दीज आर लाइक बेसिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें क्या, पहले वाले में आप देख पा रहे हो कि इट्स बेसिकली कि थ्री साइड्स, तीनों साइड्स आपके ट्रायंगल के रिस्पेक्टिवली इक्वल है और एक ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ। फिर नेक्स्ट वाले फिगर में आप देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल का, दिस इज फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी में एक साइड एक एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल बी के साथ एक साइड एंगल और एक साइड बेसिक एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। So this is about congruency. I hope it's clear to everyone. Okay. समझ आ गया है क्या सबको? Let's move. Okay. Great. Okay. So let's move to the next part. So similarity of a triangle. So ये काफी टाइम होता है ना, similarity और congruency में confusion हो जाते थे बचपन में। तो yes. ओके ग्रेट। तो सिमिलैरिटी क्या होता है, किसी को पता है सिमिलर चीजें क्या होते हैं? व्हाट इज सिमिलर, व्हाट इज सिमिलैरिटी, ये टर्म पहले ये टर्म समझते हैं। व्हाट इज सिमिलैरिटी बता सकते हैं कोई? लाइक व्हाट इज सिमिलैरिटी फॉर यू? कुछ भी रियल लाइफ एग्जांपल से बता दीजिए। Yeah. So Yash, as you can see the chat, Yash has already written same method. Okay. Okay, great. Okay. ये सारी डेफिनेशन हो गई। यश, एवरीवन इज राइट। यश, शुभम, आस्तिक, Shiva has written same method. Okay. You could elaborate a little bit more. Satyam Mishra, everyone is sort of right. Look same, but it's not necessary to be equal or overlap, right? Yash has written same shape, but size may vary, right? Resemblance in appearance, right? Quantity wise, okay. Okay, everyone has got it. So similar way में ही आप again human hand जो हम लोग example पहले ले रहे थे, congruency में human hand मतलब मेरा दो हाथ, it could be like अगर same shape and size में है तो that is an example of congruency. But अगर मेरा हाथ और पकड़ लीजिए आपका हाथ, ठीक है, और anyone, for example अभी great खाली का हाथ और anyone who is a little bigger than you, तो उनका like एक छोटा हाथ, ठीक है, और एक बड़ा हाथ, like साइज में डिफरेंस होता है। सिमिलर देखने में आपको लग सकता है कि अरे 5 ही तो उंगलियां है, सब में तो सभी सेम है, स्किन से बना है, इट्स द सेम, बट डायमेंशन वाइज लाइक जो साइज वाइज इट वुड डिफर। मदर एंड अ किड्स हैंड, राइट? या एब्सोल्युटली शुभम वर्मा, ग्रेट एग्जांपल, ठीक है, मदर एंड अ किड्स हैंड, यस। तो ये हो गया आपका सिमिलैरिटी। और मतलब लेमन टर्म में जैसे आप सेजल ने प्रोबेबली शी हैज सेड already
दैट रेजेम्बलेंस रहता है दोनों फिगर का, मतलब अपीयरेंस में ऑलमोस्ट सेम ही दिखने में सेम होता है, ठीक है, एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में, मतलब सिमिलर शेप में आपका जो साइज वर्जन है कैन बी लाइक a similar size can be resized or a version like जहां पे sizes का difference हो सकता है, ठीक है, बट शेप जो है वो सिमिलर होगा। मतलब अगर ट्रायंगल है दैट वुड बी सिमिलर, अ ट्रायंगल ओनली विल बी देयर, बट वही शेप में डायमेंशन वाइज इट वुड बी डिफरेंट। और कॉन्ग्रुएंट में आइडेंटिकल होता है, मतलब एकदम एक्यूरेट होगा, कॉपी पेस्ट पेस्ट जो किसी ने लिखा भी था, सेम अपीयरेंस, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग एंड बेसिकली ये सब जानने, मतलब जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट बेटर अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज वेल। ट्रीज के स्ट्रक्चर्स, अपने घर में आप फर्नीचर्स देख लीजिए, एवरीथिंग इज मेड ऑफ लाइक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स एंड 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगरेंस, राइट। अगर एक पिक्चर आपके घर में, अगर पिक्चर कोई किसी का मम्मी पापा का पिक्चर है वॉल में, तो वो एक 2 डायमेंशनल फिगरेन है, इफ यू सी इन दैट सेंस, लाइक उनका एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, राइट। सिमिलर वे में अगर आप एक काउच देख रहे हो और एक चेयर, या फिर आप एक चेयर देख रहे हो, ठीक है, तो दैट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर, जहां पे एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस भी होगा आपका, राइट। तो हर चीज में देयर इज ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड साइज एंड ज्योमेट्री इम्बाइब्ड इन एवरीथिंग, राइट। तो इसीलिए ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, आपका फर्स्ट इज, ये जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो लाइक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कुड बी इक्वल और साइड्स कुड बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रोपोर्शनल मतलब जैसे एक ट्रायंगल पकड़ लीजिए, छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, प्रोपोर्शनली, फॉर एग्जाम्पल लुक वाइज आप मत जाइए, I'm just saying you in terms of mathematical terms, तो ये शायद से 1:2 है प्रोपोर्शनली, मतलब ये आपका हाफ साइज है इसका, मतलब हाफ साइज पिक्चर में नहीं दिख रहा है बट देन ये हाफ है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ये वाला ट्रायंगल, ताकि विजुअली भी अपीलिंग हो। ठीक है, ये वाला अब पकड़ लीजिए कि छोटा है, तो इसका हाफ है, तो प्रोपोर्शनल वाइज भी, मतलब this assuming this to be a equilateral triangle, both of it to be a equilateral triangle, तो सब कुछ आइडेंटिकल ही है, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट देन प्रोपोर्शनल वाइज में ये लोग डिफरेंट है, ठीक है। तो ये रेशियो ऑफ एरिया, मतलब इसमें आप समझ पा रहे हो कि इसका जो रेशियो ऑफ एरिया होगा टू सिमिलर ट्रायंगल में, वो आपका डिफरेंट, मतलब एरिया का रेशियो डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड सिमिलर वे में आपका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी अदर शेप्स, तो वो कोरेस्पॉन्ड करेगा ऑल्टीट्यूड्स और मीडियंस के साथ। तो हम लोग ये सारे टर्म्स भी देखेंगे आज ही, मतलब ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है, मीडियंस क्या होता है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है कि जो रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर of the 2 similar triangles are equal to the corresponding like the ratio of any other 2 corresponding sides of a triangle. Perimeter आपको पता है क्या होता है, ठीक है। another property is जो internal bisector होता है एंगल्स के ट्रायंगल में, ठीक है, वो डिवाइड करता है ऑपोजिट साइड को इंटरनली इनटू द साइज, into the ratio of the size, ठीक है, that contains the angle. तो इसका opposite वाले को ये equally वो करेगा, like ratio wise it would be dividing each other. Then another property is the line joining the midpoint of any 2 sides of a triangle is parallel to the third side, ठीक है, and is equal to half of it, okay. Next is we will elaborate on these terms like आपका altitude और medians, ये सब के बारे में we'll understand it on a better way. Okay. Let's move forward.
ऑल्टीट्यूड, ठीक है। आई होप अभी अभी तक क्लियर है सबको। सो ऑल्टीट्यूड के लिए लेट्स सी अ डायग्राम, ठीक है। A B C D E F, ओके। तो ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो ऑल्टीट्यूड का जो टर्म है, कैन एनीवन टेल मी लाइक ऑल्टीट्यूड का टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है इन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव, और इन एनी लाइक नॉर्मल पर्सपेक्टिव हम लोग क्या समझते हैं ऑल्टीट्यूड के मतलब, लाइक ऑल्टीट्यूड के बारे में। हाइट, ओके, everyone is writing height, okay great, yeah, so it is a vertical elevation, जो कि आप लोग बता ही रहे हो, हाइट, हाइट भी वर्टिकल एलिवेशन ही है, परपेंडिकुलर हाइट, राइट, ग्रेट। कोई भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है, अबव द सरफेस, और ज्योग्राफिकल ऐसे मतलब उसमें देखा जाए तो अबव सी लेवल, या फिर कोई भी एक लैंड मास, किसी के मतलब एक बेस को पकड़ के फिर उसके साथ हम लोग उसका हाइट या फिर और लाइक वर्टिकल एलिवेशन जो है उसको मेजर करते हैं, राइट। तो ये एक आप अगर लाइक होराइजन को भी आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे होराइजेंटल लाइन होता है, horizontal line as we know it's a parallel to the plane of horizon only, ठीक है। horizon is something which the point where sky and land meets, ठीक है। तो horizontal line वो होता है, तो horizontal line से एक जो perpendicular like एक angular elevation आता है, ठीक है, that is basically the altitude of it, and इसमें आप देख सकते हो कि ये जो होता है ये फिर आपका फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड होता है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इट्स अ फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ कमिंग बैक टू ऑल्टीट्यूड, टू अंडरस्टैंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, सो इट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स हम लोगों को पता था, जैसे ये वाले ए बी सी वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, सो ए बी सी दीज आर द वर्टिसेस, राइट। सो ये वर्टिसेस से ये ए वाले जो वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और सी वर्टेक्स है, यहां से आप एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ये लाइन खींच के आपका नेक्स्ट वाले जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड में आपका ये गिर रहा है, लाइक बेसिकली इट्स मर्ज, लाइक इट्स स्टॉपिंग देयर, ओके। एंड नेक्स्ट इज आपका ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट बी आपका ए सी वाले लाइन सेगमेंट पे आके मीट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज ये जो तीनों मतलब ये बीई एफ सी एंड ए डी, ये तीनों जो आपका परपेंडिकुलर लाइंस है, ये एक सेंटर पे भी मीट कर रहा है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एंड दिस दीज आर द ऑल्टीट्यूड्स, ए डी, ठीक है, बीई और आप एफ सी या सी एफ, ये आपका ऑल्टीट्यूड हो गया, मतलब ऑल्टीट्यूड्स हो गया, ठीक है। और ये जो मीट कर रहा है ऑर्थो सेंटर पे, दिस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस एंटायर ट्रायंगल। सो दिस इज अबाउट इट, आई गेस लाइक ऑल्टीट्यूड में ज्यादा क्वेश्चंस लाइक कुछ एज सच क्वेश्चंस अभी अराइज नहीं होंगे, ठीक है। Does anyone else anything else to like does anyone have anything else to mention? ऑल्टीट्यूड के बारे में अगर आपके पास और कोई नॉलेज है, यू कैन मेंशन इट एज वेल। और हाँ,
जैसे आप समझ पा रहे हो कि ये अगर एक परपेंडिकुलर लाइन है और एक बेस के साथ आपका मीटिंग पॉइंट भी है, ये फुट हिल लाइक फुट ऑफ एन ऑल्टीट्यूड है, तो ये एक एंगल बनाता है विच इज 90 डिग्री. तो एवरी ऑल ऑफ दीज विल बी 90 डिग्री. तो 90 90 90 90. ओके, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो इसका तो 180 होता है, आपको पता है. ये entire is 180, तो this is 90 and this is 90. And this is also kind of bisecting only. मतलब ये आप समझ पा रहे हो कि ये B वाले वर्टेक्स को बाइसेक्ट ही कर रहे हैं. तो नेक्स्ट कम्स आपका एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, सिमिलर वे में आप एक ट्रायंगल ही देख लीजिए. सो ट्रायंगल देख, ये वाले ट्रायंगल में ए बी सी. ठीक है, ए बी सी में एंगल ए है यहाँ पे. ठीक है, ये वाला एक एंगल है, बी एक एंगल है और सी भी एक एंगल है. तो सिमिलर वे में इसको अगर हम लोग मिडिल से डिवाइड कर रहे या फिर बाइसेक्ट कर रहे, ठीक है, इसको मतलब मिडिल से अलग कर दे रहे. ठीक है, I'm trying my best to make the diagram proper, but then yeah. तो ये वाला एक पॉइंट होता है मीटिंग पॉइंट. अगेन विल नो अबाउट इट, बट देन पहले ये देखते हैं. ठीक है, ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे जो आपके हैं बीई अगेन, ठीक है, सी एफ और ए डी था ना, तो ये सारे आपका ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली दिस ए डी एंगल ए डी बीई and CF are angle bisector. These are angle bisectors. ठीक है, एंड दीज आर एंगल बाइसेक्टर. और ये जो मिडिल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, दैट इज आपका इन सेंटर बताते हैं. ठीक है, इन सेंटर और आई, यू कैन टर्म इट एज आई. दिस इज इन सेंटर. इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर बिकॉज ये इट इज इन सेंटर, तो ये इन सेंटर है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट इट. आई होप like everyone is getting what I'm trying to say. Now आपका ये जो in center है, so we can understand कि ये वाला point एक सर्कल ही बना रहा है. This is a sort of एक mid point of a circle भी आप बता सकते हो. तो if we draw excuse me. Yeah. So if we draw a circle like this, ठीक है, तो ये जो होगा आपका पॉइंट आई डी, ये आप समझ पा रहे हो कि इट इज अ रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, अ पार्ट ऑफ इट्स रेडियाई. ठीक है, तो ये देन आपका आई डी, आई ई और आई एफ, ये सारे आपका इन रेडियस है ये सर्कल का, ये एंटायर सर्कल का. तो ये इन सेंटर इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल ओनली. तो इन मतलब सर्कल के मिड पॉइंट है. और ये जो आई डी है और आई ई एंड आई एफ, these are in radius. एंड यहाँ पे एक और एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला एंगल बी आई सी, ये वाला एंगल दिस वन बी आई सी इज एक्चुअली इक्वल टू 90 डिग्री प्लस आपका एंगल ए का हाफ. ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस इज कमिंग टू बीइंग. ठीक है, मतलब ये कैसे हो रहा है कि मतलब ये बी आई सी सबको टेक्निकली पता ही होगा, मतलब सबको टेक्निकली समझ आ रहा होगा कि ये कैसे है, मतलब फिगर से ही समझ आता है. 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए क्यू है, बट विल सी इन अ मैथमेटिकल फॉर्म. ठीक है,
अभी तक आई गेस सबको समझ आ गया है एंगल बाइसेक्टर क्या है। एंगल बाइसेक्टर एक एंगल को जो बाइसेक्ट करता है, दिस इज वेरी सिंपल। और ये जो एंगल ए है, एंगल ए को बाइसेक्ट करके इसको 2a बना दे रहा है, एंगल बी को बाइसेक्ट करके ऑफ कोर्स इसको 2b बना दे रहा है, एंड आई एम राइटिंग इट स्मॉल बिकॉज दिस एंगल इज गेटिंग रिड्यूस टू 2 पार्ट्स, राइट। सो एंगल सी भी आपका 2c बना दे रहा है। सो ये दो इक्विवेलेंट लाइक इक्वल आपका एंगल में डिवाइड हो जा रहा है, राइट। यही होता है, दिस इज अबाउट इट। तो नाउ नाउ लेट्स सी हाउ दिस थिंग हैपेंस। ये वाला जो मैंने लास्ट लाइन लिखा था, BIC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए by 2. Okay. So now see, I'm so sorry. I have to draw this triangle again so that it's easier for everyone to understand. A, B, C. Okay. जल्दी से draw कर दे रहे हो। अरे यार, ये इन सेंटर में मीट कर रहा था, एंड ये इन सेंटर आपका एक सर्कल का भी, इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, जो कि इनके फुटहिल ऑफ काइंड ऑफ ये फुट्स पे भी मीट कर रहे थे ये सर्कल। तो वी वर सेइंग कि ये जो AD था, BE था और CF था, ये सारे आपके इसके जो हाफ ऑफ पार्ट्स थे, मतलब ID जो था, ID वाज अ रेडियाई लाइक रेडियस, ID, IE और आपका IF, दीज वर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। BIC, हाउ इज इट दिस थिंग, लाइक BIC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए का हाफ, मतलब एंगल A/2, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही थी कि ये जो एंगल A है, ये बड़ा एंगल, हाँ, दिस बिग एंगल, दिस बिग B एंगल एंड बिग C एंगल, बिग C एंड बिग दिस वन, ठीक है। ये जो एंगल A है, this is actually this is getting bisected by the angle bisected AD, and it's getting divided into 2A, मतलब दो छोटा छोटा A, and then B वाला भी ये हो रहा है 2B, then C वाला भी this is happening 2C, ठीक है। Similar way में now angle ये जो है BIC, एंगल BIC आप देख पा रहे हो कि दिस एंगल BIC, दिस इज एक्चुअली आपका 180। आई एम टेलिंग यू व्हाई 180, क्योंकि वी हैव लर्नड बहुत पहले बचपन में ही वी हैव सीन कि ये जो एंटायर या फिर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जब हम लोग देख रहे थे, बेसिक जब ट्रायंगल समझ रहे थे, वी हैव सीन कि जो इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आपका 180 होता है, ठीक है। ये जो इंटीरियर जो आपका एंगल्स के सम होता है सब मिला के, ठीक है, मतलब आपका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये आपका सब मिला के 180 डिग्री होता है। इट डजेंट मैटर कि कौन सा क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैटर करता है, क्योंकि आप नहीं तो डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों है। तो 60-60-60 होता है इक्विलैटरल में। बाकी ट्रायंगल्स में एज सच आप मतलब एज सच आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर वैसा सम है तो उसमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है BIC, तो हम लोग BIC में वापस आते हैं। तो BIC इज बेसिकली 180 माइनस B प्लस C, दिस B दिस C, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका एंड BIC इज ऑल्सो आपका हाफ ऑफ एंगल, half of this angle. Just give me a second. हाँ, तो हाफ ऑफ आपका एंगल BAC,
तो ये BAC का हाफ है दिस वन, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि ये मतलब ये एग्जैक्टली 1/2 ऑफ दिस एंटायर बिग एंगल बन जाता है, क्योंकि ये इन सेंटर है और ये आपका बेस तो सेम ही है। और जैसे हम लोग सिमिलर जब पढ़ रहे थे, सिमिलर ट्रायंगल्स, तो दिस इज similar to this one and this is half of it. Okay, so angle this BIC will satisfy both of these criteria. तो now this angle, this entire angle ABC जो है, इसमें हम लोगों के पास जैसे कि एंगल A प्लस एंगल B एंगल C was equal to 180, तो यहाँ से हम लोग लिख पाते हैं कि this considering this वाला this part we can write 2A plus 2B plus 2C is equal to 180. ठीक है, now we can also write this 2A is equal to 180 minus आपका 2B plus 2C. ओके, सो नाउ आपका जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि 2 कॉमन है, तो दिस इज 90 माइनस आप B plus C. दिस इज व्हाट वी कैन राइट, एंड देन वी नो कि ये जो A है, दिस A इज एक्चुअली आपका this A is actually half of this ना, half of angle A ना, तो ये A is actually half of angle BAC और angle A आप ये भी लिख सकते हो कि BAC और A, ये BAC का हाफ भी है ना एंगल A, ये वाला एंगल A है, तो एंगल A ये BAC का हाफ है. ठीक है, आई होप यू गाइज आर एबल टू फॉलो. आप लोग फॉलो कर पा रहे हो? ओके ग्रेट. ओके, तो ये हाफ है BAC का. ठीक है, नाउ देयर इज नो स्पेस, सो अच्छा नीचे करते हैं. यहाँ पे आप देख पाते हो कि दिस वन, सो दिस 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC एंगल A या BAC जो भी आप, मैं BAC नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू B plus C. तो दिस इज एक्चुअली में 180 माइनस B plus C माइनस है. ठीक है, ये एंड विच इज एक्चुअली एंगल BIC. जब BIC का ये जो दो आपका ये था सेटिस्फाई करने के लिए जो कंडीशंस थे. ठीक है, so now we can, since this is about it, तो यहाँ से we can derive that I'm omitting this part. अरे तो यहाँ से we can derive that this angle BIC जो था which is equal to 90 plus half of angle BAC, मतलब A, angle A, half of angle A was A, or you can, मतलब half of angle A is A, or we can also write it as 90 plus A, मतलब ऐसे लिख सकते हैं. और यही तो निकाला था, तो हाफ ऑफ मतलब 90 प्लस A लिखने की जरूरत नहीं है, यही है. ठीक है, दिस इज अबाउट इट. सो दिस इज मतलब ये फिगर से भी समझ आता है, बट इफ यू हैव टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन इट इन अ लाइक अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे using all the previous theorems and all the all properties of like triangle and all. So this is how we will understand this. Okay, next is I hope it's clear. Next, we'll move on to perpendicular bisector. So in perpendicular bisector, it is
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हम लोग जब ऑल्टीट्यूड देख रहे थे, वी वर काइंड ऑफ ऑल्सो सेइंग दैट वाज आल्सो फॉर्म ऑफ ऑल्सो काइंड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल पकड़ रहे हो, ठीक है, if this is a triangle, if क्या मतलब this is a triangle, नेमिंग कर देते PQR। so in this सिमिलर वे में अगर आप एक वो देख रहे हो कि जैसे हम लोग बाइसेक्शन के वो कंसिडर कर रहे थे, तो बाइसेक्शन और वो ऑल्टीट्यूड वाला ही कंसिडर करते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो मतलब ये जो हम लोग देख रहे थे ऑल्टीट्यूड और जो एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट के थोड़ा अलग जाके ये क्या होता है, ये जो साइड है ना, ये जो साइड है इसका एक मिड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट होगा आपका 1 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मिड पॉइंट। For example, this is the midpoint of this, and this is the midpoint of this, and this is the midpoint, or this is not the midpoint, मतलब, 1 minute. अरे एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। ये सारे जो साइड्स के जो मिड पॉइंट है, इसमें से आप एक लाइन सेगमेंट पास करवाओगे और ये आपका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस साइड होगा। ये वाले साइड का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये साइड अगर आप ऐसे उल्टा दे रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन जैसे यहाँ पे खींचे थे, ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन आप खींच रहे हो, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है एंड यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे लाइन आपका अगेन एक पॉइंट पे मीट करता है एंड आप इसको एक्सटेंड करके यू कैन ऑल्सो काइंड ऑफ merge into the vertices or vertex for your better understanding, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और अब क्या होता है, ये जो तीन आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, मतलब परपेंडिकुलरली एक ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो नाउ ये जो पॉइंट बना रहा है ना मिडिल में, इसको सर्कम सेंटर बताते हैं, ठीक है। यू कैन टर्म इट एज सी एंड ये जो ट्रायंगल था, ओके, PQR ही कंसिडर। सो इन दिस PQR या ABC ही आप कंसिडर करो, क्योंकि यहाँ पे PQR था, ABC, तो ये ABC था, तो PQ यहाँ पे जैसे हम लोग BE पहले वाले ट्रायंगल में कर रहे थे, AD BE एंड CF। तो यहाँ पे आपका जो ये CD है, ये आपका CE है और CF है। यहाँ पे सिमिलर वे में आपका एक इनर सर्कल आप अगर बनाओगे तो ये अगेन इट वुड बी द इट वुड बी आपका radius, and now this circumcenter is also a center of a circle that is in which this entire triangle can get submerged, मतलब एक triangle आपके एक सर्कल में अंदर फिट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से एक सर्कल आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, this would be a very bad circle, but then for our understanding we'll just do it somehow. So ये जो सर्कल क्रिएट हुआ है, ये सर्कल का
सेंटर भी यही है. तो दिस सर्कम center is actually a center of this bigger circle, in which the entire triangle is getting submerged, or this entire triangle is getting circumscribed भी बताते हैं इसको. The term is circumscribe. ठीक है. So this triangle is getting circumscribed into this entire circle. ठीक है. So now what happens, this triangle ABC, एंड ये जो एंगल बाइसेक्टर आप देख रहे थे, ये जो एफ मतलब ये वाले फिगर से ही आप देख लो, ये भी एबीसी हम लोग नाम कर देते हैं इसका. तो एबीसी में भी अगर आप इसको डी यहाँ पे जैसे लाइक इसको नेमिंग किया है, तो ए डी जो था, दिस इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग दिस एंगल ए, then B is also bisecting B, and CF is also bisecting C. So this thing is coming and meeting at a point. ये जो angle bisectors है, its midpoint is actually C. ये जो सर्कम सेंटर है, और ये सर्कम सेंटर ये बिगर सर्कल का भी सेंटर है. ठीक है. तो अभी क्या होता है, ये जो एंटायर ट्रायंगल है, इसमें आपका ये जो DEF था ना, जो हम लोग बता रहे थे कि DEF इज एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ ये साइड, मतलब BC का जो मिड पॉइंट है ये D है, मिड पॉइंट. ये D है आपका. AC का मिड पॉइंट इज E. AB का मिड पॉइंट इज F, राइट. तो ये जो DEF है, ये सारे आपका ये सारे साइड्स के मिड पॉइंट्स हो गए. ठीक है. और अब ये जो सर्कम रेडियस है, नाउ वी विल सी लाइक सर्कल, ऑफ कोर्स इफ वी आर कंसिडरिंग द एंटायर बिग सर्कल, उसका भी रेडियस भी तो समझना पड़ेगा. तो रेडियस वुड बी PC. just follow whatever I'm writing, and this I'm just giving it because ये CC merge हो जाएगा, मतलब दोनों का नाम सेम दे दिए, मतलब डैश है. ठीक है. तो A C डैश B डैश डैश. ठीक है. ये सब आपका ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया. तो लेट्स चेक एंड तो ये वाला BC dash, AC dash, this one dash wala, and CC, these this becomes this triangle का, this triangle का जो angle bisectors है, तो ये angle bisector आपका ये entire circle का radius बन जाता है. angle bisector का जो part है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये भी पार्ट, बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर, ये सारे आपका ये एंटायर ट्रायंगल के आपका रेडियस बन जाता है. सो दिस वाज अबाउट इट. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द साइड, मतलब साइड के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स विल exactly be at the midpoint of triangle. This is about it. And अभी मीडियन में जाते हैं. ठीक है. ओके. सो मीडियन, अगेन मीडियन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मीडियन पे. सो वी विल सी दैट टुडे. मीडियन में क्या होता है, एक ये जो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम ही हो, मतलब सेम ही है, जो हम लोगों को लगेगा सेम है. ठीक है. पर आर्ग्यूबली डिफरेंट भी होगा.
which is again A B C D, A D B E C F. अभी ये जो मीडियन है, मीडियन वही एक लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज लाइन का तो कोई सीमा नहीं है, तो लाइन सेगमेंट का होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट है मीडियन भी एक, जो कि ज्वाइन करता है आपका जो वर्टेक्स है हर एक ट्राइंगल का उसके साथ, और आपका मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ठीक है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स एंड दिस इज अ वर्टेक्स। तो ये आपका वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, तो ये लाइन सेगमेंट आपका वर्टेक्स को चीरते हुए नेक्स्ट जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट में आके गिरता है। तो ये मिड पॉइंट है डी अगेन, लाइक वी हैव सीन इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब मीडियन में क्या होता है ना, ये दो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर और लाइक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड वाला, तो ये सारे मर्ज हो जा रहे एंड वी आर गेटिंग दिस मीडियन वाला पार्ट, मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एक लाइन सेगमेंट ही है ऑफ कोर्स, लाइन सेगमेंट है ये आपका, ज्वाइन करता है वर्टेक्स को ऑफ द ट्रायंगल एंड आपका गिरता है एंड देन विथ किसके साथ ज्वाइन करता है, joins with midpoint of the opposite side of opposite side। ठीक है, ये आपका तीन काइंड ऑफ क्राइटेरिया है मीडियन का। तो अभी ये जो तीन मीडियन है आप जैसे देख पा रहे हो, तो ये मीडियन का जो अगेन द सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, शायद हाँ सेंट्रॉइड बता बोलते हैं, हाँ गॉट इट। तो ये सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, मीडियन का जो मिडिल पॉइंट होता है। नाउ द सेंट्रॉइड divides the median in a ratio of 1:2 from the base of the sides। तो ये जो साइड के बेस है, ये सेंट्रॉइड आपका एग्जैक्टली 1:2 मतलब 1.5 में डिवाइड करता है, हाफ। ठीक है, सो ये जो एंटायर ट्रायंगल आप देख पाते हो, जो ये एंटायर ट्रायंगल है आपका एबीसी, दिस एंटायर ट्रायंगल एबीसी का जो एडी है और आपका ए बीई एंड सी एफ है, ये ही सब आपका मीडियंस है, क्योंकि ऑफ कोर्स it is joining the vertex of this entire triangle A with the opposite side of its opposite side का midpoint which is D, and then similar way में हर एक साइड में सेम हो रहा है, हर एक वर्टेक्स में भी सेम हो रहा है। तो AD एक मीडियन हो गया, B हो गया, बी वर्टेक्स से स्टार्ट होके ई वाले पॉइंट पे आ रहा है, और सिमिलर वे में सी वाले वर्टेक्स पे स्टार्ट होके एफ वाले पॉइंट पे आ रहा है। एंड एफ E and D, these are the midpoints. I mean, F, E and D, these are the midpoints. So this is it. And then ये जो ये वाला हाफ वाला क्राइटेरिया है, इसका क्या होता है, ये जो सेंट्रॉइड वाले पॉइंट पे जो मीट कर रहा है ना, इसको सी ना बोल के आप कुछ भी बोलो, क्या बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सी वाला सर्कम सेंटर वाला देखा था, तो कंफ्यूज हो मत होइए। मीडियन वाले को सेंट्रॉइड बताते हैं, तो इनका नाम मैंने चेंज कर दिया। तो नाउ ये जो मिड पॉइंट है जी, ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो है जी डी, जी ई और जी एफ, ठीक है, आई एम राइटिंग इट, फॉलो अकॉर्डिंगली। जी डी, सॉरी, जी डी, जी ई एंड जी एफ। ठीक है, ये सारा है। अभी आपका ये जो हाफ वाला क्राइटेरिया मैंने बताया था, ये आप फिगर से समझिए ऐसे कि ये जो ए जी है
और GD है is equal to this, which is similar to this one as well. Like अगर आप ये वाला देख रहे हो तो which is BG और GE is also this, मतलब half of it, right? And then आपका similar way में ये वाले में क्या होगा, CG पहले, हाँ CG, now GF is also this. So this is about it. तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि मीडियन मीडियन बेसिकली एक जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये जो एंटायर ट्रायंगल है, ये मीडियन क्या कर रहा है, टू इक्वल ट्रायंगल्स, मतलब हर एक, ये वाला फिगर आप देखिए, आई एम चेंजिंग द कलर एंड सी दिस पार्ट, ठीक है, this part and this part. यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि मीडियन, यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि मीडियन क्या करता है कि एक ट्रायंगल को छोटा छोटा इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है. लाइक आप यहाँ पे देखिए कि टू इक्वल ट्रायंगल्स पे, और एक अगर ये वाला देखिए आप, ये भी टू इक्वल ट्रायंगल्स है, मतलब टू इक्वल ट्रायंगल्स पे एक पूरा इसको मतलब एक ट्रायंगल को डिवाइड कर देता है, मतलब पूरा सेग्रीगेट कर दे रहा है. So this is about it. This is about today's class. I guess it was like sort of clear only. If anyone has any doubt, you know where to reach. And if anyone has anything else to kind of as in कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज है आप इनपुट करना चाहते हो, you can always say it to me, और आप क्लास में of course hand raise करके you can add on. एंड हर किसी के क्लास में आप ये कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में वी विल डीप डाइव इनटू क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है. क्वाड्रिलैटरल्स के जो पार्ट्स होते हैं, लाइक आई वाज मेंशनिंग इन द लास्ट क्लास एज वेल, पैरेललोग्राम इज देयर, rhombus इज देयर, so it will take a little bit time to discuss about those things as well, okay. And yeah, and then aapka square trapezium is also there. So all of these things we'll understand, and then we'll move on to circles. We'll understand circle in a better way. So all of like it will take probably 2 or 3 classes more to complete this entire portion, and then we'll move on to integers and all. Okay, so this is about it. If anyone has any doubt, you can mention it in the group chat, or you can mention it to me as well. Okay, if anyone has any numerical that you want to solve, you have solved and you want to share it as well, ये particular chapter से related, you can always mention it in this particular to me, ठीक है. तो हम लोग next class में कुछ plan out कर सकते हैं, and you can also kind of show those numericals to the entire class, so we can learn togetherly, ठीक है. I hope. Bye guys, have a great day.